श्री राधा 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 कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण है तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण है तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है विश्वास, कृष्ण है विश्वास।
first, I would like to offer my obeisances unto the feet of a very renowned Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada. I also like to offer my respect to Indreshji Maharaj, who has graced us Nairobi Vasis again, and has come with his group of devotees as well from India to give us another surreal experience. On behalf of the organizers, who are Somit Shah and family, Yadav Jani and family, a big thank you to all of you for taking the time to attend this katha. I know it's a working day, and I'm sure many will still be trickling in, but thank you for making the time to come for this katha. I mean, I'm thanking all of you, but really this is for your benefit. You are benefiting from this katha. So also a very warm and special welcome, especially to those who've come from abroad, traveled from abroad. We have very many of those who have come from the US, the UK. But also we have with us someone very special, Buddhimanta Prabhu, Buddhimanta Das, who has come all the way from India, Noida. He's actually the temple head of ISKCON Noida. He's here with us as well. Thank you, Buddhimanta Prabhu, for gracing us with your presence. Now, I know there's been so many changes to the dates. I should bring this up. We've been bombarding all of you in Nairobi with so many changes of dates and times. But unfortunately, this is due to circumstances which are beyond our control. I'm sure many of you already are aware and obviously know, because you've lived here, you've been living here, you've experienced the heavy rains we've had in the past few days. So for that reason, we've had to change the timings and dates. But we're here now, finally. So I think all went well. At the end of the day, nothing is in our hands. This is all Thakurji's plan. So whatever happened, I'm sure it happened for the right reasons. And you know, behind obviously all these date changes, there was a committee of 30 people who, you know, we were sitting down with and trying to come up with the best possible scenarios such that everyone can take benefit of this katha. So Indreshji came for the first time in Kenya last year. How many of you were here for last year's katha? Raise your hands. Okay, well, that's almost everyone. Amazing. So last year, Maharajji from the Vyasasan gave a promise and said that for next year, March, I will be here. And he has lived by his word. So can we please welcome him with a really loud Jai Shri Krishna on 3. 1, 2, 3. It doesn't sound like you're all very happy to have him here. Come on, one more time. 1, 2, 3. Yes. There we go. There we go. So, but this time he's not just come himself and with the team. He's come with someone very special. He's come with his other half this time. Shipraji. He's come with Shipraji. So a big Jai Shri Krishna for her as well. A big Jai Shri Krishna for her as well. There we go. So, where is Shipraji? Actually, there's a light is in my face. Oh, there we go. So, Shipraji, actually, you know, पिछले साल क्या हुआ? मैंने पूरी speech English में की, right? So, महाराज जी stress में आ गए कि वो सोच रहे थे कि ये बंदा यहाँ पे बस भर के इतनी हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि श्रोता को हिंदी समझ नहीं आती है, right? तो एक्चुअली महाराज जी नैरोबी की श्रोता को हिंदी समझ आती है, लेकिन अगर आप चाहो कि ये श्रोता अच्छी तरह से समझे तो आपको गुजराती में बोलना पड़ेगा. यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कितने हैं? बोलो राधे राधे. हिंदी बोलने वाले और गुजराती वाला कौन છે? गुजराती बोलवारा કેટલા છે? Oh wow, okay, so for one time we have more Hindi speakers than Gujarati speakers. Otherwise महाराज जी मैं बोलने वाला था कि आपको शायद गुजराती में कथा करनी पड़ेगी. But it's good to see this big turnout, all of you, and it's really you know, a blessing to see that all of you were here last year and you've come back. It shows that you're eager and excited for this katha and future kathas as well. So, just a small introduction of Indresh ji. He was born in the sacred land of Vrindavan. How many of you here have been to Vrindavan? Oh, beautiful. Because I was speaking to a few people and we were discussing Vrindavan. So I think this katha, obviously, because you've been to Vrindavan, Maharaj is from Vrindavan,
I think you'll have a special connection with this katha, definitely. So he's born and come from Vrindavan, and even though he's only about 29 years old, am I correct, Maharaj? 29? 29 years old. You always have to confirm, age is a bit sensitive. So even though he's only 29 years old, he's already touched, so many hearts of people around the world. Hundreds of thousands, if not millions of people in India and around the world through his powerful kathas. In fact, Yadav Bhai was telling me just a few days ago that there was somebody who attended last year's katha in Nairobi. And he attended that katha and heard Maharaj Ji speak live for the first time in his life. He had seen a few reels on Instagram and, seen reels of his bhajan and little, snippets of the kathas. But he came last year when we had the katha in Nairobi, and he heard the katha for the first time live. And after listening for 3 days, he has been listening to Maharaj's katha daily since then. So this is the effect Maharaj Ji has had on the people around the world, and especially the youth. Social media can be used in many ways. It's just like a knife. You can use a knife to stab somebody, or you can use a knife to, cut vegetables and cook some lovely prasad. So social media can be used in many ways. There's really, disgusting ways it can be used, and there's really beautiful ways it can be used. So Maharaj Ji is using social media in a very beautiful way, trying to preach to the world, reach out to the youth, and a lot of youth have been reciprocating by joining this path of bhakti. So that's the effect that he's been having on the world. And he comes from a deeply spiritual family. His respected father, Pujya Shri Krishna Chandra Shastri Thakurji, is himself a renowned Bhagavad Katha Vachak and was Maharaj's first guru, guiding him in the path of devotion and scripture from a very young age, actually. So from childhood, Indreshi Maharaj showed deep interest in spirituality. And, he's already studied so many spiritual texts, like the Gita, like the Bhagavatam, in his teenage years. And soon after, he carried on actually narrating the katha himself. So today, through his beautiful storytelling, heartfelt bhajans, like I said, I'm sure all of you have heard his beautiful bhajans on YouTube, right? Radha Ramanam Hare Hare, Govardhan Vasi Savare, so many beautiful bhajans. In fact, he's just released a few Hori Pads recently, just I think about a week ago. So please look for those beautiful pads. So through all of this, he's helped devotees understand the deeper meaning of our scriptures and connect more closely with Bhagwan. He inspires everyone, especially the youth, like I said, to walk the path of bhakti and seva. He's also inspired many celebrities like B. Prak. He's helped him join the path of bhakti as well. And today we're extremely fortunate to have him here in front of us, come all the way to Nairobi to bless us with this divine Bhagavad Katha again. So my humble request to everyone, you've come here today, please come tomorrow and come on Wednesday as well. This is like a yatra, right? When you start a yatra, it's important and it's crucial that you finish the yatra. Just the way you come and do pradakshina somewhere. When we do pradakshina, we do a full round. We don't do halfway and turn around. In the same way, for you to complete this yatra, you have to come all 3 days. And this is the best way. Gift yourself this. Don't give yourself this katha. I say gift yourself this katha. It's special. Like I mentioned, this is not for the benefit of the organizers. This is for your own benefit. So please gift this to yourself. And just make your way here, make your way here and everything will take place the way it's supposed to. Maharaj Ji will nourish your souls with beautiful katha. We will try and nourish your taste buds with some beautiful prasad after. So now I would like to invite the organizers. Somit Ji, please come up on stage. Rajan Jani Ji, please come up on stage to welcome Indreshi Maharaj with some garlands and also his team. I also request Kirti Mataji to please come and welcome Shipraji as well with a garland. So the team that has come from India consists of Anujji. We have Anujji here with us, part of the team. We have Dharmendra Ji, we have Raghav Ji, Premchand Ji, Deepak Ji, Swapnil Ji and Guru Dutt Ji. They've also come all the way from India with Maharaj. So, as they're being welcomed with the garlands, let me quickly run through some house rules.
So I'll just quickly go through some house rules. The biggest and most important house rule, please put your phones on silent. I'm not asking you to switch off your phones. Please put your phone on silent. This is a katha. It's not a lecture we're sitting in. It's not a class we're sitting. This is katha that is taking place. The last thing we want is when Maharaj is speaking and someone's ringtone is going off. Please put them on silent. Avoid any unnecessary movements in the hall. Parents with young children, please try and keep them calm. Try and keep them quiet. If you have to, you can take them outside for a while so that they can play, and then you can come back in once they're settled down. If you need water, we have dispensers outside the hall. Please go and have some water there. I request you do not come inside with the cups and glasses as they may make noise. Those of you who can, especially the younger crowd, if you're able to, please come and sit on the mattresses in the front. Let's try and keep the chairs at the back for the elderly. In case of anything, in case you need any assistance, please don't hesitate to speak to our volunteers. You'll see them with badges. Come speak to them. Come see myself, anybody. If you need any assistance, please don't hesitate. With that, now we ask Indresh Ji Maharaj to nourish our souls with this divine discourse and katha. Thank you, Maharaj. Thank you, everybody. श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। देखो, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री कृष्ण। हमें कोई बोला कि महाराज जी हम कथा सुनने तंजानिया से आए हैं, कोई बोले युगांडा से आए हैं, कोई बोले यूके से आए हैं, कोई बोले साउथ अफ्रीका से आए। हमने कि हम भी कथा सुनाने भारत से आए हैं। तो आप ही अपने कष्ट क्यों कह रहे हो कि आप दूर से आए हो? हम भी तो ऑल द वे भारत से आए हैं। और केनिया में हमको पूरी दुनिया में कथा करने में बड़ी आसानी होती, पर केनिया में सबसे ज्यादा पापड़ बेलने होते हैं। और ये क्यों है ये नहीं पता। कहते हैं कि परिश्रम उस वस्तु के लिए किया जाता है जो बहुत मूल्यवान हो। तो निश्चित है कि आप केनिया वासी खूब मूल्यवान हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में हमको भी परिश्रम करते हुए आना पड़ता है। और ये तो पहली बार ही हुआ है शायद हमारी कथा के पूरे क्रम में कि कोई कथा अपने नियमित तिथि से नहीं हो रही है, 2 दिन 3 दिन बाद हो रही है। आज के दिन कथा विश्राम होनी थी, आज प्रारंभ हो रही है। लेकिन इस बार हम जल्दी आ गए थे, 2 दिन पहले ही आ गए थे। 2 दिन से आपके केनिया में आनंद ले रहे हैं। नेक भैया या को बेस धीमो कर दो। और इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी करी गोपाल की सब होए, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही होता है। हम चाहे जितना भी परिश्रम कर लें कि हम यहाँ कथा करेंगे, ऐसे करेंगे, इस भाव से करेंगे, पर इन सब में हम आपकी बस एक प्रयास मात्र है। ठाकुर जी की कृपा से ही सब होता है। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम भी भारत से आए हैं, इसलिए हमारा ही गाना हो, हम ही गावें, हम ही पूरा परिश्रम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी करताल बजाइए, पीछे पीछे गाइए, ऊंचे स्वर में गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा श्री राधा रमण लाल की जय। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। आ कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कर कालिंदी कोल किलो। जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी कुल किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि आइए। बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि ओ बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि 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 हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल।
नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं और सबसे कहते हैं कि एक बार हरि बोल बोलो, बस एक बार बोलो। वे लोग कहते हैं कि हम हरि बोल बोलेंगे तो घर के काम कौन करेगा? तो श्री नित्यानंद महाप्रभु तो ये भी कहते हैं हम कर देंगे घर के काम, लेकिन तुम हरि बोल बोलो। इसलिए आसपास जो आपके अगल बगल में बैठे हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कहो, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री भक्तमाल जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, रण छोड़ राय भगवान की जय, वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, प्यारे राधा गिरधर लाल की, राधा माधव प्रभु की अनंत कृपा से हम आप सब लोग अफ्रीका के इस सुंदर देश केनिया के नायरोबी शहर में बैठे हैं और 3 दिवस के लिए भगवत वार्ता, वैष्णव वार्ता, भागवती वार्ता श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान हमारे समस्त गंधर्वजन, हमारे एसएसडी मंदिर जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं वहाँ के पूज्य हमारे पंडित जी महाराज, आप हमारे ब्रज से ही यहाँ पधारे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। हमारे साथ वृंदावन से
आए हुए समस्त गंधर्वजन विप्रवृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण। नेक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नायरोबी में गत वर्ष आए थे कथा सुनाने के लिए और सहज ही बोलते बोलते ऐसा मैंने बोल दिया था कि अगली बार मैं 5 दिन के लिए नायरोबी आऊंगा और 5 दिन कथा सुनाऊंगा। हम तो बालक हैं, हम तो भक्त हैं, हम लोग तो संसारी जीव हैं, हम लोगों से तो वचन निभाया जाता नहीं है, पर ठाकुर जी वचन निभाते हैं। हमने ये भी कहा था कि 5 दिन लाल जी नायरोबी विराजेंगे, तो लाल जी ने अपना वचन निभाया। वो 2 दिन कथा इसीलिए स्थगित कराई कि 3 दिन की कथा होगी, 2 दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, कितने हो गए 5 दिन। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो हमारे ठाकुर जी वचन निभाते हैं। इस बात से एक बात आप लोग सीख सकते हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। संसार के लोग तो वचन नहीं निभाते, हम संसार के लोग हैं, पर ठाकुर जी अपना वचन निभाते हैं। इतनी व्यवस्थाएं हमारे शाह फैमिली ने, जानी फैमिली ने, पूरी फैमिली और ये सब हमारे मित्र बंधु जन जो पूरी सेवा में लगे, कितने दिन से सब लोग लगे थे। बाहर आप लोग अभी भी पंडाल देख ही रहे हो, कितना सुंदर पंडाल बना, पूरी व्यवस्था वहाँ की, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, इतनी तैयारियां हो चुकी, लेकिन ठाकुर जी को कुछ और मंजूर है और उनकी इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो चाहते हैं वही होता है और ठाकुर जी शायद चाहते थे, हम तो यही मानते हैं उसमें। हर वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए पॉजिटिव रहो। जो कुछ भी लाइफ में होता है उसमें कुछ अच्छा ठाकुर जी ने सोचा है, ये सोच करके जिस दिन आप जीने लग जाएंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आज मैं यहां से उतरूं और मेरा पैर मुड़ जाए, मोच हो जाए, लग जाए, तो भी इसमें यही सोचना है कि ठाकुर जी कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए हुआ। गाड़ी कहीं पर छुप जाए, बाल उड़ने लग जाएं, नौकरी छूट जाए, कुछ भी हो, सब में बस यही विचार करना है, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे। ठाकुर जी नचा रहे हैं। हमारी पूरी कथा सुनते हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पहली कथा से ही मेरी पूरी कथा श्रवण करते हैं। आप एक बात कहते थे पंडित जी महाराज, व्रजवासियों के अति प्रिय और ठाकुर जी के अति प्रिय। ठाकुर जी आपकी गोद में खेलते थे। दुर्भाग्य है मेरा कि आपका भगवत धाम गमन 94 में हो गया और मेरा जन्म 96 में हुआ। मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, पर पूरी कथा सुनाता हूं। और ये कथा सुनाने का एक ही भाव, मैंने एक बात आपकी पढ़ी थी, तब से मुझे ऐसा हो गया कि ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो आपने एक बात कही, किसी ने आपको पत्र लिख करके भेजा, सब लोग समझ रहे हैं ना हिंदी, ऐसा है हमको, आप अनपढ़ नहीं समझना, हमको अंग्रेजी आती है, बट कथा नहीं होती हमसे अंग्रेजी में, क्योंकि भाई अंग्रेजी भावलेस भाषा है। पोपट भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यू स्पीक सो फ्लुएंटली, बट वो फ्लुएंट मेरा हिंदी में ही आएगा। फ्लुएंटली कोई अंग्रेजी बोल सकता है, पर उसमें भाव प्रकट कैसे करेगा?
अब मैं बताऊंगा, कई भाव की बातें जब आएंगी, अब मैं बोलूंगा इसको अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, किसी के आंखों में आंसू नहीं आ सकते, लेकिन वही जब ब्रज भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधाजी रे मारा वाला ने, हे वढीने के जो जी। अब वढीने के जो जी, इसको आप अंग्रेजी में कितना भी बोल लो नहीं समझ में आएगा। मथुरा ना राजा था चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो। अब मथुरा का राजा बन गया है, हम ग्वालाओं को भूल गया वो कन्हैया। हे ओधाजी रे, मेरे तो अभी सिर से पीछे तक सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ब्रजभाषा, ये हैं भाषाएं। इनको जब बोलते हैं तो भाव प्रकट होता है, वो तब कथा नहीं होती, तब भाव प्रवाह होता है। अंग्रेजी जब बोलते हैं तो व्यक्ति केवल अपनी विद्वत्ता झाड़ रहा है, वो केवल अपनी ये बता रहा है कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग बुरा ना माने, हाँ, लेकिन भाव तो हिंदी में ही है। तो मैं क्या बता रहा था, कुछ किस तरफ था, हाँ, तो महाराज जी, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आपसे किसी ने पत्र लिख करके पूछा कि महाराज जी, ठाकुर जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, मेरा काम चला गया, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, मेरा घर भी बिक गया, मेरी जमीन प्रॉपर्टी भी चली गई, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, बाबा मैं क्या करूं। अब कहा तो उसने ब्रजभाषा में था, मैं बस आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे ब्रजभाषा भी आ जाएगी। तो लिख करके कहा कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बाबा, मैं क्या करूं बताओ। तो फिर बाबा ने उत्तर लिख करके क्या भेजा कि भैया, ठाकुर जी को खेलवे को स्वभाव है, ठाकुर जी खेल हैं, ठाकुर जी तो यूं मत कहो कि ठाकुर जी आप हमारे साथ खेलो मत, ठाकुर जी से कहो जितना चाहो उतना खेलो, लेकिन याद रहे अंतिम श्वास तक खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना बदलना नहीं, मैं ही आपका खिलौना रहूं। हम सब टॉयज हैं, हम सब लोग सब खिलौने हैं भगवान के, ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। बच्चा उसी खिलौने से खेलता है जो उस बच्चे को सुख देता है, जो बच्चे को सुख नहीं देता वो उस खिलौने से नहीं खेलता। एक वो छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना आता है, आप कुछ भी बोलो तो वो खिलौना हिल करके फिर वही चीज बोलता है, देखा है वो एक प्लांट जैसा होता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर बच्चा जैसे बोलेगा आ, तो उसमें से भी आवाज आती है आ, और वो हिलता और है। तो मैंने कई वीडियोस देखे कि वो जब हिलता है, बोलता है, तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो फिर माँ जब भी उस खिलौने को लेके आती है, वो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको दूर रखो। लेकिन जो खिलौना उस बच्चे को अच्छा लगता है, वो खिलौना देखते ही माँ उसको भोजन भी करा देती है, उसी खिलौने को दिखा के उसको सुला भी देती है, उसको नहला भी देती है, वो उस खिलौने को पूरे दिन अपने पास रखता है। ऐसा खिलौना हमें बनना है। ठाकुर जी सदा हमसे राजी रहें, सदा हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खेलते ही रहें, बस हमें छोड़े ना। तो ये बात बाबा की इतनी बढ़िया लगी, तब से हमारे बाबा संग ही विराजते हैं। नायरोबी की कथा के लिए ठाकुर जी के सब खिलौने हैं, नायरोबी वाले इतना खेलते हैं हर साल ठाकुर जी। पिछले साल एंड मूवमेंट तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था, सब लोग विमान में बैठने वाले थे और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट फंसा था मेरा। मैंने कहा चले जाओ, बिना दुल्हा की बारात कैसी। लेकिन एंड मूवमेंट पर वो सब लोग जो पिछले साल थे उनको सब पता है कि वो एक मिरेकल था, कैसे ठाकुर जी ने एंड मूवमेंट पर संडे के दिन एम्बेसी से पासपोर्ट निकला, वो भी इवनिंग के टाइम पे, और पासपोर्ट आया, मैं तुरंत फ्लाइट में बैठा और केन्या आ गया।
इस साल ठाकुर जी ने कैसा खेल खेला कि वीजा भी था, पासपोर्ट भी था, फ्लाइट की टिकट्स भी थी। पहले थोड़ा सा खेले यूएई साइड के वो हमले होने लगे, तो एमिरेट्स वगैरह ये चली नहीं रही हैं। और इंडिगो का तो मंजर मैंने पिछली साल बताया ही था आपको। तो मैं थोड़ा दहशत में था कि इतनी लंबी यात्रा मैं कैसे करूं, लेकिन वो हुआ। तो फिर दूसरे विमान मिल गए, उनसे आए तो यहां पहुंचते ही इंद्रेश आए हैं, तो इंद्र तो बरसेंगे। असमय की बारिश। अच्छा, आई एम नॉट इंद्र, ओके। इंद्रेश मीन्स इंद्रश्य ईश्वर, यानी कि श्री गिरिराज धरण, श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम है इंद्रेश। तो अब आए तो फिर यहां पे ऐसी वर्षा, वो भी असमय की बारिश, इतनी ताबड़तोड़ बारिश। मैं पहले दिन आया था, यहाँ सब बच्चे लगे थे, पूरी घास बिछा रहे थे पंडाल में कि कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक रहे। बस यहाँ से मैं गया, उसके बाद और बारिश। हमारे यादव प्रभु जी बड़ी चिंता में आ गए, बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा देखो। फिर पूरी मीटिंग हुई तो सब ने हमसे कहा महाराज जी 2 दिन का समय मिल जाए, यहाँ कोई और कार्यक्रम था इस हॉल में, बाहर बहुत कीचड़ है, उसमें कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना है, यहाँ कथा पूरी करके 3 दिन का जयपुर में सत्र था। और भारत में जो सत्र होते हैं ना, उसकी तैयारियां तो 1-1 साल पहले से होने लगती हैं, पर वो सत्र वैसा नहीं था, किंचन सत्र था। जो लोग कथा रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है किंचन सत्र क्या है। पर मैंने रिक्वेस्ट की और जयपुर वाले लोगों ने बलिदान दिया है नैरोबी वालों के लिए। दे सेड कि महाराज जी आप कोई अगली डेट हमें दे दीजिए, पर आप नैरोबी कथा कराइए। तो उन लोगों को आप थैंक यू बोल दीजिएगा कि अगर जयपुर वाले अड़ जाते, 11 तारीख से थी, 11, 12, 13, और यहां आज 9 को विश्राम होना था कथा का। अगर वो लोग अड़ जाते कि नहीं हम अपनी डेट आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या होता। लेकिन बस उनका भी योगदान, बेचारे रोए तो बहुत, लेकिन ये कथा नैरोबी वालों को मिली। तो भैया बहुत मेहनत से मिली है आपको ये कथा। पिछली बार सुई लगवा करके कथा करने आए थे हम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देश देखा जहां सुई लगवा के आना पड़ता है वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इस बार भी 1-2 लोग होते हुए आए हमारे 2-3 लोग नए आए, ये भी। मैंने कहा चलो नैरोबी घुमा के लाते हैं। मैंने कहा अमेरिका जाना इतना इजी है, यूके जाना इजी है, ऑस्ट्रेलिया जाना इजी है। मैंने कहा नैरोबी जाके देखो, पता चलेगा कैसा राम सेतु बनाना पड़ता है। और तब आते हैं नैरोबी। लेकिन यहां आते ही आप सब लोगों का प्रेम मिलता है, तो जितनी भी थकान और जो भी कुछ परेशानियां हुई होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं, सब आनंद हो जाती हैं। मूल बात, हम सब खिलौने हैं और ठाकुर जी हमारे साथ खेलते रहते हैं, जस्ट टू चेक कि ये मुझे सुख देगा कि नहीं। अगर हम हार मान जाते 2 दिन पहले बारिश देख करके और कहते कि अब, या जयपुर की कथा भी नहीं हो रही होती, हम लोग ही कहते महाराज जी अब नहीं हो पा रहा, तो शायद ठाकुर जी हम खिलौनों से अब प्रसन्न हो जाते कि मजा नहीं आया, हमने खेल खेला और ये लोग हार गए। लेकिन खेल खेले ठाकुर जी, पर हम फिर भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं आनंद के साथ में। वर्किंग डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने एक बात किन्हीं से कही थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कथा होती, या अपनी कथा शनिवार, सैटरडे, संडे, मंडे थी ना, तो मैंने कहा उसमें यह हो सकता था कि हर कोई आता। कई लोग तो ऐसे भी आते कि चलो कथा के बहाने भोजन ही करके आ जाएंगे। पर अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वही आएंगे जिनको कथा सुननी है, काम से जल्दी वाइंड अप करना। और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब 3 दिन का सत्र है। नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। कल रात्रि बात हुई तो मन में हुआ कि होली के ऊपर 3 दिन कुछ कहें, पर
हमने मन में विचार किया होली का विषय विश्राम करें, क्योंकि होली निकल गई 40 दिन की, और ब्रज में अगर होली पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा सुख है, क्योंकि ब्रज के भाव रसिया बार बार गाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती थी। फिर मन में आया क्या करें, 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य आदि, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पर ऑलरेडी इतने सारे लोग जगन्नाथ जी को कथा सुनते ही रहते हैं, जगन्नाथ जी का रस सुनते ही रहते हैं, पर हम मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी को लाएंगे बीच बीच में कथा में। तो मन में भाव आया फिर क्या कहें। तो कल हमारी पिंकी माता जी रात्रि में आई, बोले महाराज जी गुजराती बहुत हैं हमारे नायरोबी में, आप थोड़ा देखिए ना, कुछ ऐसा सुनाइए कि सुख मिले। तो मन में आया कि श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र 3 दिन तक सुनाएंगे। और इतना सुंदर, अब हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं। भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी, वो 3 खंड रखे, 1st, 2nd एंड 4th, 3rd वाला रखा ही नहीं था, जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे 3rd, 2nd, 4th, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो 3rd पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, वो पंडित जी ने मुझको दे दिया था। तो अचानक से वो 3rd पार्ट मिला, इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो 3rd पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला, तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ही दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है। और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं। तो थोड़ी स्पेस रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, वो निश्चित आएंगे। नायरोबी में कथा श्रवण करने के लिए नाथ जरूर आएंगे। तो श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, और मुझे ऐसा विश्वास है, अभी हमारे पोपट भाई बता रहे थे कि पिछले साल किसी ने कथा सुनी,